Good morning everyone. Today we'll learn about electricity chapter, and in this chapter we will learn about transient analysis of RC circuit. Okay, in this topic we'll cover some subtopics of charging of a capacitor in RC circuit, heat produced in charging of a capacitor, and discharging of a capacitor in an RC circuit. Okay. Now figure 1, in figure 1 you can see an open circuit diagram. Now in the figure 2 we have just closed it. So after closing the switch for a short interval of time, current flows and charge in the capacitor plate increases to Q equal to C into E, and then current in the circuit becomes 0. That state is known as steady state of current, steady state of circuit. That state is known as what? Steady state of circuit. मतलब स्विच क्लोज करने के बाद up to that point where the capacitor gets fully charged and after that current in the circuit becomes 0, उस state को हम क्या बोलते हैं? Steady state of current. Now the state of the circuit just after closing the switch and before it attains the steady state is called transient state. तो ये जो बीच का state होता है ना, transient steady state पहुंचने के पहले, उसको हम बोलते हैं transient state, and the duration for which current flows in the circuit until the steady state is attained is known as transient duration. Okay, now figure 3 shows the graph of charge, how it varies with the time just after closing the switch. You can see in no time, like at t equal to 0, the capacitor gets fully charged, and after it gets fully charged then its charge becomes constant, so there will be no current because current is what? Rate of change of charge. अगर चार्ज फ्लो ही नहीं हो रहा है तो तुम्हारा करंट कहाँ से आएगा? ऑब्वियस सी बात है. ठीक है. Now in the figure 4 we can see an RC circuit, like it has a capacitor along with it and resistor is attached. ठीक है. Now यहाँ पे जो होगा उतना जल्दी तुम्हारा चार्ज नहीं होगा compared to the previous case where the circuit was purely capacitive, जहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं था. तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा. So basically due to the presence of a resistance R, charging is not as fast as that was in the case of the previous. ठीक है. But the charge on the capacitor will gradually increase and finally it will achieve a steady state of value Q equal to CE, but it will take time, and then the current in the circuit will become 0 eventually when the steady state will be achieved. Okay, now we will analyze your charging of a capacitor in an RC circuit. अभी हम क्या देखेंगे? अभी हम देखेंगे charging of a capacitor in an RC circuit. Basically we will find charge. So हम इस figure 5 use करके we will find the value of charge. How we will find that? Okay, let's apply KVL, Kirchhoff's voltage law here. So if we take this path, this clockwise direction, we know that what? If your potential is gaining, then we will take plus potential, and if potential is dropping, then we will take minus potential. Okay, अगर तुमने E से शुरू किया तो देखो वो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, मतलब पोटेंशियल गेन हो रहा है. सो विल राइट प्लस सी. एंड कैपेसिटर में क्या हो रहा है? लेफ्ट से वो राइट की तरफ जा रहा है. नाउ वी नो दैट करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सो ऑब्वियसली देयर विल बी ए पोटेंशियल ड्रॉप. सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल हियर? माइनस Q by C. Okay, now when the current will flow through the resistor, again it flows from higher potential to lower potential, so again there will be a potential drop, and our potential at the resistance will be IR equal to 0. Now we have to find the value of charge. So how we'll find that? We'll do like this. Okay, now CE minus Q by C into R. We have jumped a step. Okay, now what do you know? Current is equal to rate of flow of charge dq by dt. ठीक है. To integrate that, we'll bring that Q वाला term just under dq like this. Otherwise we can't do the integration. I guess you are well aware of that fact. ठीक है. Now we will integrate that from 0 to the time t where it will achieve the charge of what? It will achieve the charge of Q. ठीक है. अच्छा, now we know the chain rule I guess. Okay, so here इसको हम assume करेंगे ये हमारा Q है, तो ये क्या होगा? ln Q होगा. मतलब होता, अगर वो सिर्फ Q होता, बट ये Q नहीं है,
इसलिए हम इसको चेन रूल इसके नीचे क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे किसको, दैट सी माइनस क्यू को, एंड दिस इज आवर अपर लिमिट, दिस इज आवर लोअर लिमिट. ओके, नाउ सी आर इज कॉन्स्टेंट, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी हो जाएगा, ख़त्म कहानी, अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट 0. ठीक है, यहाँ से हम करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा कि बस एक सिर्फ माइनस ही मिलेगा नीचे, बिकॉज सी तो कांस्टेंट है, उसका तो 0 होना है. तो माइनस एल एन सी माइनस क्यू, अपर लिमिट क्यू, लोअर लिमिट 0 एंड टी बाई सी आर. यहाँ से एक बार क्यू की जगह पे क्यू, एक बार 0 की जगह पे 0, तो वो क्या आएगा, माइनस एल एन सी माइनस क्यू एंड माइनस माइनस प्लस एल एन सी इक्वल टू टी बाई आवर सी आर. ठीक है, अभी यहाँ पे हम एक माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एल एन सी ई माइनस क्यू माइनस एल एन सी ई इक्वल टू माइनस टी बाई सी आर. तो दिस इज एल एन एम माइनस एल एन एन, सो एल एन एम बाई एन, तो सी ई माइनस क्यू बाई सी ई एंड इट विल कम लाइक व्हाट, माइनस टी बाई सी आर. अब इफ एल एन एम इक्वल टू एक्स, देन वी कैन राइट एम इक्वल टू ई टू द पावर एक्स. I guess you all know this basic rule of logarithm. तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, e to the power minus t by cr. So what is the value of key? I am just jumping one step, 1 minus e to the power minus t by cr. Okay, in the above equation you can see that what we can see, the charge rises exponentially. ठीक है, सो इसका जो ग्राफ आता है वो ग्राफ कुछ ऐसे आता है, चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ. ठीक है, इसका चार्ज वर्सेस जो टाइम का ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा हम लोगों का. ठीक है, ओके. नाउ इन द above इक्वेशन लाइक दिस, वी टेक दिस एज आवर इक्वेशन 1. इन इक्वेशन 1 अगर हम लेट्स कैलकुलेट चार्ज ऑन time equal to what, c into r. At time c equal t equal to cr, we can find that q equal to ce 1 minus e to the power minus 1, which is c into e 1 minus 1 by e, and the value of e, I guess we all know that 2.718. नहीं पता है तो जान लो अभी. इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.63 ce. So we can say that the duration T equal to RC is an important duration in the analysis of RC circuit, and उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट. ठीक है, and it is denoted by symbol tau. So tau is what, our टाइम कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना है, RC. मतलब इस टाइम पे क्या होता है, जो तुम्हारा कैपेसिटर होता है इन RC सर्किट, वो उसका स्टेडी स्टेट का 63% तक चार्ज हो जाता है. So what is time constant? The time duration in which the capacitor of an RC circuit charged up to 63% of its steady state value is known as time duration. उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं time constant. ठीक है, now let's find what is current here. तो अच्छा, by the way, experimentally it has been proved that कि at t equal to तुम्हारा कितना 5 tau, मतलब at t equal to 5 RC जो तुम्हारा चार्ज होता है वो क्या बनता है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 5, मतलब तब वो बन जाता है 0.99 ऑफ सी इंटू ई. मतलब 99% ऑफ इट्स वैल्यू एट स्टेडी स्टेट can achieved at time t equal to 5 RC. Although that is theoretically it takes infinity time to the capacitor. It takes infinity time for the capacitor to get fully charged, but practically we can take that at 5 RC the capacitor gets fully charged, and theoretically remaining 1% charge it will attain in infinite duration. Okay, ठीक है. Now suppose we have to find the value of current. So what is the value of current? It's dq by dt. So our equation was this. ठीक है, equation number 1. From here if we differentiate it we can get the value of what, ddt of q. What is the value of q? ce 1 minus e to the power minus t by cr. ओके, नाउ c इज कांस्टेंट, उसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा. अब बचा है कौन, माइनस दिस. तो माइनस का करोगे तुम तो माइनस ई टू दी पावर जो है उसको वैसे ही लिख देना. अब टी बाई सी आर तो एक्स्ट्रा है,
वो तो हमारा मतलब था नहीं, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे बाय यूजिंग चेन रूल, ठीक है, माइनस टी बाई सी आर। अब ये करने के बाद क्या हो रहा है हम लोगों का, लेट्स सी, अच्छा इसमें तो एक सी भी है ना सामने कांस्टेंट के टर्म में, सी इंटू ई डॉट दिस, ओके। सो यहाँ से वो आएगा तुम्हारा माइनस सी बाई आर, तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो सी ई इंटू आवर 1 बाई सी आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर, and from here we can get the value of current as E by R into e to the power minus t by CR. So this is the expression of current in charging of a capacitor. Okay, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ बनेगा करंट का वर्सेस टाइम, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। करंट का टाइम के, ठीक है, सो दिस विल बी द at time t equal to 0 the value of current will be E by R, ठीक है ना। at time t equal to 0 वहाँ value of current कितना आएगा, E by R, so this will be the value of current versus time, and in the graph of charge versus time this value is your basically C into E, and this is the like time equal to tau which is equal to CR at this, and the charge in the capacitor gets equal to 63% of its value at steady state, मतलब 0.63 CE, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम बोले कि व्हाट इज़ द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एट आर, इट विल बी आई इंटू आर। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ तुम्हारा आई, ई बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर इंटू आर मारोगे, आर आर कट जाएगा, क्या बचेगा, ई इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर। सो दिस इज द पोटेंशियल अक्रॉस इट, ठीक है। नाउ सो एंड दिस वाज ऑल अबाउट चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर in an RC circuit. Now suppose we have to find heat produced in charging of a capacitor. Heat, we have to find what? Heat produced in charging of a capacitor, ठीक है। अच्छा, ये सीरीज में कनेक्टेड है INR कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, सो वी कैन राइट दिस H इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू डी टी। अच्छा, theoretically charging lasts for infinite time as I told you, but practically we take like at t equal to 5 RC the capacitor gets fully charged. So we have to do a theoretical calculations here, so we'll take the limits from 0 to infinity. Okay, now what was the value of I that we found here was E by R into e to the power minus t by CR। तो उसका हम स्क्वायर लेंगे, मतलब इसका स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस 2t बाई आर सी इंटू आर इंटू डी टी, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेट मारेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू इट। ये एक एक आर कटेगा, मतलब क्या बचेगा, ई स्क्वायर बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस 2t बाई आर सी इंटू डी टी, ठीक है। तो उसके लिए तो ई स्क्वायर बाई आर कॉन्स्टेंट है, वो बाहर चला आएगा, 0 to infinity, ठीक है, वो बाहर आ जाएगा स्क्वायर बाई आर। तो बाहर आने के बाद क्या बचा, इसका इंटीग्रेशन बचा, तो इसका ई टू द पावर अगर वो x होता तो इसका क्या होता वैल्यू, जैसा था वैसे ही रहता है, e टू द पावर x मतलब माइनस 2t बाई आर सी। अब देखा हमने कि अगर सिर्फ t होता तो ये होता, बट यहाँ पे t के साथ बहुत कुछ है, तो चेन रूल लगा के हम नीचे क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसको, जो एक्स्ट्रा था, मतलब जिसको हमने t माना था बेसिकली। सो वो कहाँ से कहाँ, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो स्क्वायर बाई आर इंटू यहाँ से हम करेंगे तो क्या आएगा, टी को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होके बाहर आएगा, तो माइनस माइनस, अच्छा माइनस तो है नहीं तो वो नहीं कटेगा, एक माइनस आएगा सामने, तो माइनस आर सी बाई 2 आ जाएगा ऊपर, और तुम्हारा यहाँ पे बचेगा ई टू द पावर माइनस 2t बाई आर सी, अपर लिमिट इन्फिनिटी, लोअर लिमिट 0, ठीक है। हाँ ठीक चल रहा है सब। तो यहाँ से हम देखेंगे इसका जो वैल्यू आता है वो हाफ सी स्क्वायर आता है, और टी का वैल्यू मतलब 0 to 0 माइनस 1, सो इट विल बी लाइक हाफ सी स्क्वायर, जिसको हम हाफ सी स्क्वायर के फॉर्म में भी जानते हैं।
So this is the heat produced in charging of a capacitor in our RC circuit. Okay, now अभी हम क्या करेंगे, डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू ए रेजिस्टर जानेंगे. अभी हम क्या जानेंगे, डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू ए रेजिस्टर. वो रेजिस्टर से कैसे डिस्चार्ज होता है, इसमें एक चार्ज का एक फॉर्मूला निकलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई पर्सपेक्टिव. आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. ठीक है. सो व्हेन ए कैपेसिटर इज चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस V एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स, द चार्ज इन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज मेंटेन्ड until it is reconnected to some closed circuit. ठीक है. अब जब तुमने उसको स्विच को फिर से क्लोज कर लिया बाय चांस और तुमने उसको सर्किट एक कंप्लीट सर्किट बना दिया, उसके बाद क्या होगा, चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल. तब हमारा जो चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा. वो बहुत शॉर्ट टाइम में जैसे चार्ज होता है वैसे ही वो बहुत शॉर्ट टाइम में डिस्चार्ज भी होता है. तो ये बन जाएगा उसका ग्राफ. ठीक है. दिस इज द डिस्चार्ज, दिस इज द ग्राफ ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर. ठीक है. सो व्हेन द स्विच इज क्लोज, सपोज तुमने वही कर दिया कि पहले लाइक यहाँ पे सॉरी देयर विल बी नो बैटरी. अगर तुमने वो कर दिया लाइक इट हैज़ स्टोर्ड सम चार्ज ना, फिर अगर तुमने इस बैटरी को मानो कनेक्ट कर लिया, इस बैटरी को अगर तुमने कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, ये जो चार्ज है वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा. ठीक है. व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड ड्यू टू द शॉर्ट सर्किटिंग द प्लेट्स, द चार्ज एट वन प्लेट एट हाई पोटेंशियल विल फ्लो टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल प्लेट एंड कैपेसिटर विल गेट डिस्चार्ज्ड. ठीक है. अच्छा, नाउ अगर हम एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं, मतलब डिस्चार्जिंग कितना चार्ज होता है उसको निकालने के लिए, एंड दिस इज़ आवर थ्रू ए रेजिस्टर वो होता है. ठीक है. सो हियर इट विल गेट प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू, दिस इज आवर कैपेसिटर, दिस इज आवर रेजिस्टेंस आर. ठीक है. सो व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेस्ड starts discharging but at a slow pace due to the presence of resistance. रेजिस्टेंस होने के बाद जैसे चार्जिंग धीरे होता था, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस डिस्चार्जिंग भी धीरे होने लगेगा. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे वो निकालते हैं तुम्हारा अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ठीक है. अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यहाँ पे हम मानो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दिया. ठीक है. तो अगर करंट इधर से मानो फ्लो हुआ तो क्या होगा, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है, मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप होगा माइनस आई, तो माइनस आई आर, मानो इधर से आई करंट जा रहा है और इधर से भी वही होगा हाल. तो पोटेंशियल इससे निकल रहा है तो वो क्या होगा, प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू ज़ीरो. तो तुम्हारा जो आई का वैल्यू है वो क्या निकला, क्यू बाई आर से निकला. अब हमको ये चार्ज डिस्चार्ज हो रहा था ना, तो हम आई को क्या लिख सकते हैं, हम आई को ये लिख सकते हैं कि तुम्हारा माइनस डी क्यू बाई डी टी. So we can write what, minus dq by dt equal to our q by rc. हम लिख सकते हैं इसको. अब like if we integrate the above equation from the time of closing the switch to an intermediate constant t मानो, जहाँ पे जाके वो डिस्चार्जिंग ख़त्म होगा, तब वो क्या निकलेगा, लाइक माइनस डी क्यू, इस इंटीग्रेट करने के लिए तो क्यू को नीचे ही लाना होगा, एंड डी टी बाई आर सी. मानो तुम 0 से t टाइम बाद वो पूरा चार्ज डिस्चार्ज हो गया, मतलब पहले क्यू था फिर वो कितना आ गया, छोटा क्यू पे आ गया. ठीक है. तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा एल एन क्यू, मानो इधर ऊपर क्यू नीचे ज़ीरो और इस माइनस को तुम इधर लेके आओ तो माइनस टी बाई आर सी आ जाएगा. करेक्ट. अच्छा, ये हमने कहाँ से कहाँ तक किया, अप टू क्यू जब चार्ज फुल्ली था और अप टू ए स्मॉल क्यू जहाँ पे चार्ज डिस्चार्ज होके आया. ठीक है. तो इसको करेंगे हम, क्या बनेगा, एल एन क्यू बाई क्यू बनेगा अल्टीमेटली, और यहाँ पे माइनस टी बाई आर सी. तो हमारा क्यू बाई क्यू का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, माइनस ई टू द पावर टी बाई आर सी. सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ स्मॉल की, इट विल बी क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी. तो ये जो छोटा क्यू है वो क्या है, दिस इक्वेशन गिव्स द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. ठीक है. अब the variation of this charge during discharging of a capacitor through a resistance can be
shown like this. Suppose this is your q, this is your t. After a certain time it will go like this, ठीक है. दिस इज द वैल्यू q जहाँ से वो उसमें डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, ठीक है. आफ्टर सर्टेन टाइम it went like this graph. Now we can calculate the discharge in the above RC circuit as a function of time by differentiating this equation. अगर हमको करंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे ना, डी क्यू. तो ये क्या बनेगा यहाँ से, माइनस क्यू बाई आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी. डिफरेंशिएट कर थ्रू चेन रूल लगाने के बाद ये हमारा करंट निकल गया, ठीक है. तो एट टी इक्वल टू ज़ीरो, एट जब टाइम ज़ीरो था तब हमारा करंट कितना था, माइनस क्यू बाई आर सी, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है. सो जो वेरिएशन ऑफ, यहाँ पे देखो करंट का जो इक्वेशन है वो भी एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ की तरह ही बिहेव कर रहा है, ठीक है. तो अगर हम करंट और टाइम का एक ग्राफ बनाते हैं वो भी ऐसा ही आएगा, ठीक है. एंड दिस इज योर क्यू बाई आर सी जो मैक्सिमम वैल्यू रहा, ठीक है. सॉरी, दिस इज नॉट माइनस, दिस इज करंट इक्वल टू प्लस क्यू बाई आर सी. तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग एंड ट्रांजिएंट एनालिसिस थोड़ा हमने डिस्कशन किया. तो नेक्स्ट डे हम यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो रिपीटेड टाइम्स में जे मेंस में आया है.